ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟੌਪ 200 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, HSSC ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ PPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਚਰਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਟੀਮ ਦਾ ਯਾਨੀ 2.0 ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਔਰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, PDFs ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈ-ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5th ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਲੀਗ 2020 ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਆਟਰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੁਆਟਰ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਸਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਭੋਪਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਦੌਰ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? HS ਪੁਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਨੀ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਲੀਗ 2020 ਕੁਆਟਰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੁਆਟਰ ਦੂਜਾ। ਕੁਆਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲੀ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਰਬਨ ਕਲੀਨੈਸ ਐਂਡ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਦੌਰ ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PDFs ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਚਲਿਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈੱਡ ਫੋਰਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੈ ਲਗਭਗ ਜਿਹਨੇ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰ ਦਾ ਈਅਰ 1920 ਅਤੇ 20 ਮਤਲਬ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 20 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗਿਰੀਸ਼ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਅਤਾਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਤਾਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੰਤਾਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 2019-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਅਤੇ 24-25 ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 2024-25 ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਅਫੇਅਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅੰਤਾਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇੰਜॉय ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ PMFBY, मतलब कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हुण तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किदों शुरू किया गया सी और इहदे बारे किहने जानकारी दित्ती, इहदे हैड कौन ने, ठीक है। तो इहदे हैड ने राजनाथ सिंह, जो कि प्रेजेंट टाइम कौन ने, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। गल करते हैं निर्मला सीतारमन कौन ने, यह फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह होम मिनिस्टर है। प्रकाश जावड़ेकर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर दा तुसी दसना है कि प्रकाश जावड़ेकर किहड़े मिनिस्टर ने, खास तौर पर बीजेपी की कॉन्फ्रेंस में जिहड़े हाईलाइटेड मिनिस्टर रहिंदे ने, ठीक है। आई होप तुहानूं इहदी डिटेल भी प्रॉपर तरीके नाल समझ आ गई होएगी। चलिए हुण आपां शुरुआत करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नैक्सट भी तुहानूं जो करवावांगा मैं। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आपां। क्वेश्चन नंबर चौथा तुहानूं दे रखिया स्क्रीन ते। चौथे नंबर क्वेश्चन दे विच पुछया गया इन्हां दे विचों किहड़ी सिटी है सैटअप होस्ट द 14th ग्लोबल जो हैल्थ केयर समिट 2021 दे विच होएगा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, याद रखो कि अमेरिकन जो एसोसीएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब कि जिन्होंने आप AAPI कहने हैं, याद रखना कि पेपर के पूछा गया सी कि AIPI की चीज़ है। तो यह है अमेरिकन एसोसीएशन फिजिशियन ऑफ इंडियन जो ओरिजिन है, मतलब कि अमेरिका एसोसीएशन के जो फिजिशियन इंडियन ओरिजिन है बेसिकली वो की करनगे कि इत्थे मैं कह सकता कि इंडियन अमेरिकन जो फिजिशियन है उन्होंने सैटअप किया 3 दिनों का, जो कि 3 दिनों का चलेगा। 14th ग्लोबल हैल्थ केयर समिट है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के चलेगा और अपने उत्थे वो पार्टिसिपेट करनगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन है 5वां नंबर, तुसी नाम दसना है, ठीक है, 5th डिपार्टमेंट। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट दसना है कि क्रिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी MOD का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 यानी 1961, ठीक है। 1961 के तहत नवा जो एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया उसका नाम की है, प्लीज़ मैंने जरूर कमेंट करके तुसी दसना वा। चलिए इसका जो सही ऑप्शन होएगा दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर, ऑप्शन नंबर दूजा बिल्कुल राइट होएगा। मैं दसना चाहांगा कि मेरे सैशन के अंदर मैं किसी भी स्टूडेंट्स के, किसी भी गुरुजन के, किसी भी साथी दोस्त मित्र के मैं कमेंट्स रीड नहीं करांगा। मेरे सीरीज़ के अंदर मैं बिल्कुल भी टाइम व्यतीत नहीं करांगा, टाइम वेस्ट नहीं करांगा। बहुत सारे तुसीं ऑनलाइन स्टडी करते वक्त साइड इफेक्ट देखते हो कि टीचर्स तुहानूं पढ़ाउंदे घट ने और बल्कि वो की करते हैं स्टूडेंट्स के कमेंट्स रीड करते, उन्होंने गल्लां बातां करते, अपना वक्त ज़्यादा व्यतीत करते हैं। सो दैट मेरे सैशन के बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो बिल्कुल इहदा मैं की कह सकता हाँ कि DMA मतलब डिफेंस ऑफ मिलिटरी अफेयर्स यानी यह नवा डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है। किहदे द्वारा क्रिएट किया गया है दसना चाहांगा कि न्यू डिपार्टमेंट वर्क्स करेगा, एक यूनिटी बनाई गई है 3 फोर्स लई, केड़ी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लई, ठीक है। और ऑल्सो मोनीटर करेगी सर्विसेज एक्सेप्ट द कैपिटल जिन्ने भी इक्यूपेशनस अकॉर्डिंग टू द जो प्रेवेलेंट होंदे ने उन्हां लई, ठीक है। बेसिकली DMA याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस के अधीन जो तैयार किया गया वा, तो यदा जो सही नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर्स, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आप। क्वेश्चन नंबर सानू दे रखा हुआ पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सान जारी किए गए हैं। Which become the first state in India to pass a resolution scrapping the Citizenship Amendment Act, जो कि बहुत तकड़ा हल्ला मचिया हुआ है, ठीक है। याद रखना कि CCA एक डायरैक्ट बिल होंदा है और CC भी बेसिकली CC जो मैं तुहानूं दसना चाहांगा, जरा माफ़ करना, CAB क्या है, सिटीजन यानी अमेंडमेंट, हाँ जी सॉरी फॉर अनकनवीनियंस, ठीक है। सिटीजन CAB का मतलब होंदा है कि जदों कोई भी गवर्नमेंट ये पिछे बी लग्या एक बिल लैके आई है, जब तक कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, एक्ट बन गया, उस एक्ट नूं संशोधन कर सकती है गवर्नमेंट, बल्कि पूर्ण तौर पर हटाउण की परमिशन भी सेम होएगी, राष्ट्रपति ही उन्होंने अबॉलिश करेगा, हटाएगा, तब जाके वो कानून पूरी तरह से हटेगा, ठीक है।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੇਰਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਯਾਚਿਕਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ 7ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਰਬੀਆਈ, ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਿਓ। ਆਰਬੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਪੈਰਡ ਜੋ ਪੀਪਲ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਡਿਮੋਨਿਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ, मतलब डीमोनेटाइजेशंस ऑफ करंसी जो है ना ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਤਾਂ ਡਿਮੋਨਿਸ਼ਨਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਡੀਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਏਡਡ ਨੋਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿए मैं दसना चाहांगा ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 25ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨੀ। ਔਰ ਮਨੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਐਡਡ ਨੋਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਜੋ ਇੰਪੇਅਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਆਫ ਕਰੈਕਟਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿए ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 8ਵਾਂ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਦਾ ਫਸਟ ਔਰ ਯੰਗੇਸਟ, ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਯੰਗੇਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੈਲਡ ਦਾ 6 ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੀਕ ਇਨ 6 ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਮਤਲਬ 6 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ 6ਵਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੀਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਲਾਵਤ ਪੂਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਮਾਲਾਵਤ ਪੂਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਪੂਰਨਾ ਦੀ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। याद रखना है कि माउंट जैसे कि आप कह सकते हैं कि विंसन मासिफ, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द अंटार्कटिका जिहदी कितनी है 4892 मीटर है। बीकम द फस्ट एंड यंगेस्ट ट्राइबल वीमन है वर्ल्ड के अंदर जिन्हों ने कि इत्थे लगभग मैं कह सकता है कि इसनों फतेह हासिल की है। पेपर च पूछा जा सकता है। और याद रखना है राइट है शेखर बाबू ने जिन्हों के इन्हों के कोच ने। और पूर्णिमा की जो बायोग्राफी है याद रखना है पूर्णा मालावत इन्हों के नाम तो है। और जिन्होंने लिखा किने गया कि अपर्णा थोटा ने लिखा है, अपर्णा थोटा ने लिखा है। याद रखना है एडिशनल फैक्टर की मैं ढेर थोनों मैं बंब बुला दांगा इत्थे, पर प्लीज़ तुसीं शेयर करना नहीं भुलना। और चैनल को सबसक्राइब जरूर करते चलो नाल नाल। ये सैशन काफ़ी लंबा चलेगा और इस पर्टिकुलर सैशन के PDFs भी थोनों अवेलेबल करवाए जाएंगे जो साडे टैलीग्राम ग्रुप च मिलणगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां। इन्हां चों किहड़ा बैंक हैगा जिन्हें अपॉइंटेड किया है एस सुंदर नूं एज इंटरम मैनेजर डायरैक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब कि मैं कह सकदा कि इंटरिम का मतलब तुसीं समझते हो कार्यवाहक हो गया। ठीक है, 5 इत्थे तुहानूं ऑप्शंस दे रखे, 5वां है नन ऑफ दीज। तो इहदा सही आंसर होएगा लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक बिल्कुल राइट आंसर होएगा। मतलब एस सुंदर दास, एस सुंदर नॉट दास, एस सुंदर इन्हों इंटरिम मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग डायरैक्टर के तौर पर इन्हों पोस्टेड किया गया। दसना चाहांगा कुछ एडिशनल फैक्ट थोनों पूछे जा सकते हैं पेपर के संबंध में, याद रखना है। ठीक है, पेपर च थोनों पूछा जा सकता है बैंक के MD तो CO जिन्हों का नाम की है पार्थ सारथी मुखर्जी, इन्होंने रिजाइन किया है इस पोस्ट को 2019 के विच। और ये पोस्ट बिल्कुल खाली सी, इस करके इस पोस्ट से इन्हों चार्ज दिता जा रहा है। ठीक है, और चार्ज इन्हों का 30 अप्रैल 2020 तक रहेगा और टिल इनू एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होएगी नैक्सट क्वेश्चन की। नैक्सट क्वेश्चन है कि वट इज़ द इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे फॉर द क्विक ग्रीवेंस एंड इनक्वायरी बाय द पैसेंजर्स ड्यूरिंग जर्नी। रेलवे द्वारा एक हाल ही के नंबर जारी किया गया है पैसेंजर्स ਲਈ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਜਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ 139 ਹੈ 139 ਹੈ। ਇਹ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जारी किया गया। भारत रेल है
इन्हें जारी किया हैल्पलाइन नंबर है 139 है। क्विक ग्रेवांस देगा, इंक्वायरीज देगा पैसेंजर्स ड्यूरिंग द जर्नी। और खास तौर पर याद रखना है कि यह पहला 182 से 182 में एक्सैप्ट किया गया वा, ठीक है, याद रखना है। और यह लगभग जो हैल्पलाइन नंबर है एक 12 भाषाओं के काम करेगा। पेपर च तो भी तुम्हें पूछा जा सकता है, जिते तुम अपनी की जनरली कंप्लेंट है या एक्सीडेंट के है सेफली इशूज़ के संबंध में तुम पूर्ण तौर पर जानकारी लै सकते हो और तुम अपनी जानकारी होर भी जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। इन्हां च दसना है कि वेयर डिड श्री विजय राम निकल यानी रूपानी की गल दे रखी है तुहानूं इत्थे। रामनिक लाल रूपानी अनवील्ड द 50 फीट टॉल वर्ल्ड सैकेंड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल रिसेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के जे तुहानूं पूछा जाए कि इसदा सही आंसर की होएगा तो अहमदाबाद गुजरात बिल्कुल राइट आंसर है। की है अहमदाबाद। चलिए तो मतलब विजय रामनिकल रूपानी, विजय रूपानी की गल करते हैं। विजय रूपानी कौन है? विजय रूपानी याद रखना है पेपर के पूछा जा सकता है, गुजरात के सीएम है। इन्हों ने एक की किया कि मैं कह सकता अनवेल्ड द वर्ल्ड सैकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कितने है? यानी सरबा याद रखना तुम सरदार धाम जो कैंपस है नियर मैं कह सकता कि वैष्णो देवी जो सर्कल है ना अहमदाबाद वो गुजरात के विच ने, ठीक है। स्टैचू लगभग 50 फिट टॉल हैगा, लंबा हैगा, लगभग 70,000 किलोग्राम का वजन हैगा और जिसकी कीमत 3.25 करोड़ रुपया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हुण। नैक्सट क्वेश्चन की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने प्लीज़, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन ने और यह जनवरी के बेस्ट क्वेश्चन है। इस तो इलावा थोड़ा कुछ भी लर्न करने की एक्सट्रा जरूरत नहीं होएगी। विच स्टेट हैज़ सैलीब्रेटेड द, मैं थोड़ा पूछना चाहवागा कि रिटॉलिस्टिक फैसटिवल है यानी जिसनों आप लाई हारबोडा रिसेंटली कहने हैं, ये कि बल्कि स्टेट विच मनाया गया है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन और 5वां थोड़ा नन ऑफ दीज दिता गया। इसका सही आंसर होएगा त्रिपुरा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। याद रखना है लाई हारोबा, लाई हारोबा है। यह एक फैसटिवल है, ऑब्जर्व किया जाता है मणिपुरिया जो मेंटल कम्यूनिटी है, खास तौर पर मैं कह सकदा कि इन अगरतला यानी त्रिपुरा के अगरतला जाते हैं वो, और लगभग 5 दिनों का फैसटिवल होंदा है। और खास तौर पर इत्थे वो अपने कि जिमें आप कह सकते हैं कि असैंबली होंदी है कि रेबाटी मोहनदास, ठीक है, लाई हारोबा सैलीब्रेटेड किया जाता है। और लिटरेचर है, म्यूजिक, डांस, कुछ रिचुअल इन्होंने उत्थे प्रोग्राम्स होंगे ने, फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, या आप कह सकते हैं कि मार्शल आर्ट्स होंगे, इदा के कुछ ना कुछ होंगे रहते हैं। गवर्नमेंट भी उत्थे जरूर इन्हों हैल्प करती है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नैक्सट अपने को 13। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोल्ड, जिन्होंने कहा जाता है ई गैजेट पोर्टल, ठीक है जी। यह ऑफिशियल वैबसाइट है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द NIC। NIC का मतलब है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है। 5 ऑप्शन दिते गए हैं। सही आंसर की होएगा? इसका सही आंसर होएगा उड़ीसा, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना है कि उड़ीसा के सीएम कौन ने और गवर्नर कौन ने एग्जाम च पूछा जा सकता है। और इतों की कालिया एक स्कीम हैगी जी कि देहाती क्षेत्रों के बच्चों को एक स्कॉलरशिप स्कीम है, जोड़े हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एडिशनल फैक्ट की कहते हैं कि उड़ीसा ने लॉन्च की है ऑनलाइन कि ई गैजेट पोर्टल है। ई गैजेट पोर्टल मैं कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव मैं कह सकते हैं, डिजाइन किया गया, डेवलप बाय द NIC ने किया है। और बेसिकली यह थोड़ा पेपर च पूछा जा सकता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट अपडेट है भी। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन च की जानकारी दे रखी है, तुसी नाम दसना है पहला नेशन इन द वर्ल्ड किहड़ा वा कि दैट बैन किया गया उन्होंने, की किया गया बैन उन्होंने रिफटॉक्सिक यानी सन क्रीम है, सेव टू द कोरल एंड सी लाइफ। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के सही नाम तुसी दसना की है। दसना चाहवागा कि इत्थे नोरू दिता गया, बिल्कुल गलत आंसर है। मार्शल आइलैंड बिल्कुल गलत आंसर है। किरीबती बिल्कुल आंसर है। तो इसका सही आंसर होएगा पलाऊ, बिल्कुल राइट आंसर है। तो पलाऊ मैं कहांगा बिल्कुल राइट आंसर है। की जानकारी है पलाऊ बारे ये भी आप शेयर कर लें। पलाऊ बन चुके हैं पहला नेशन जिन्हें बैन करता है सन क्रीम विच डैमेज का, यानी कोरल जो रीफ्स होंगे ना साड़ियाँ, उस तो इलावा जिमें सी लाइफ है, मैं टॉक्सिक है, इन्होंने पूर्ण तौर पर इन्होंने की करता है, बैन करता है। और इट इज़ द पैसिफिक आइलैंड कंट्री, ठीक है, इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन नियर द फिलीपींस है। सन क्रीम कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीबेंजोन,
ठीक है। और ऑक्टीनॉटिक जो ऑब्जर्व करती है ना अल्ट्रावायलेट नो रेज है, उस करके इन्होंने की करता है कि कोजस वाटर मोर एसिडिक मिक्स, मतलब पूर्ण तौर पर थोनों डिटेल यदि मैं दे रखी है, बट फिर भी तुसीं ओरली इसनों याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्हां दे विचों किहड़ा ऐसा देश है, किहड़ी ऐसी कंट्री है जो बन चुकी है लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन तकरीबन $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ FY मैं कह सकते हैं 2020। जापान, मॉरिशस, यूनाइटेड स्टेट है, सिंगापुर है, नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों ਇਹਦਾ जो सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर चौथा होएगा सिंगापुर, बिल्कुल राइट चॉइस है, सिंगापुर बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा। तुसीं पूर्ण तौर पर देख सकते हो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये आंसर्स ने। ठीक है, दसना चाहांगा कि अकॉर्डिंग टू द डाटा जो रिलीज़ किया गया है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसनों आपां की कहने हैं DPIIT, DPIIT की है याद रखो, यानी डेटा रिलीज बाई डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो कि तकरीबन है इंडिया के 15% अपना बिजनेस है और रोज कर चुकी है, जो कि तकरीबन तकरीबन $26 बिलियन फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 यानी फर्स्ट हाफ का मतलब है फिजिकल ईयर। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए और दूसरी गल करते हैं कि सिंगापुर कंटिन्यूअस, सिंगापुर लार्जेस्ट सोर्सेस है इन इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो चल रहे हैं, ये भी तुसीं याद रखना है, पूछा जा सकता है ਕਿਹੜੀ फॉरेन है, फॉरेन जो डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ है। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सानू दे रखा स्क्रीन पर 16वां, हू वाज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NMC यानी नैशनल मैडिकल कमीशन जनवरी 2/2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। इंपॉर्टेंट है, न्यू अपॉइंटमेंट है, ज्वाइनिंग है। तो NMC नैशनल मैडिकल कमीशन किनू ज्वाइन कराया गया है, 5 ऑप्शन दिते गए हैं, 5वां नन ऑफ दीज है, लेकिन सही तुसीं याद रखना है सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, सुरेश चंद्र शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा है, ये सब तो ज़्यादा की है कि मैडिकल कमिश्नर है, सब तो वड्डा मैडिकल कमिश्नर है, तुसीं इनू किद्दां भी निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मतलब मैं कह सकता है कि न्यू दिल्ली दे विच जो एम्स है ना, वो प्रोफैसर है सुरेश चंद्र शर्मा, इन्होंने अपॉइंटेड किया गया है कि फर्स्ट एवर चेयरमैन ऑफ NMC, मतलब कि इस तो पहले सब तो पहली बार किया गया है बेसिकली कि शर्मा जी हैड ने कि भी ENT मतलब ईयर नोज और थ्रोट, इन्हों ENT डॉक्टर कहते हैं। ईयर जो कि ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੈਡ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ एम्स ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲਿਏ और इस तो इलावा मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि जो कमेटी ने अपॉइंटेड किया गया है डॉक्टर राकेश कुमार वेट्स नूं सैक्रैटरी जनरल बोर्ड ऑफ गवर्नर, कादे वास्ते, मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एज सैक्रैटरी ऑफ NMC। ये भी तुसीं याद रखना है, इत्थे मैं तुहानूं स्क्रीन पर लिख देना है। सुरेश चंद्र नूं तां बनाता है कमीशन बनाता है, ठीक है, लेकिन जो उन्हों का नाम की, उन्हों का नाम है राकेश कुमार, तुसीं नोट कर सकते हो। राकेश कुमार नूं की बनाया गया, याद रखना, डायरैक्ट सैक्रैटरी ऑफ जनरल बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन च की जानकारी दे रखी है, तुसीं दसना है कि इन्हां विचों किहड़ी इंडियन सिटी है, किहड़ा भारत का शहर हैगा वा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टैबलिश्ड इट्स सैकेंड लॉन्च पोर्ट ऑफ स्मॉल, यानी सैकेंड लॉन्च पोर्ट स्मॉल जो कि सैटेलाइट है व्हीकल्स वास्ते, इन्हां चों किहड़ी सिटी है जिथे स्टैबल्स किया जाएगा। बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुसीं नोट डाउन कर लो, बेहतर होएगा स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो। ठीक है, तो नोट रखना गाइस, इसका जो सही आंसर होएगा तमिलनाडु, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मैं चौथे ते जावांगा। ठीक है, तुसीं याद रखना है, तुसीं याद रखना है कि थूथू कोड़ी, ठीक है, थूथू कोड़ी मतलब कि यार इसरो ते ना, तुसीं देखो याद रखना है ईसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया सीगा, तो बल्कि वह थोड़ा जा किते ना किते जाके ऊपर क्रैश हो गया। ठीक है, सही जगह तो नहीं वो लैंड कर सकिया, बड़ी थू हो रही है। हुण की करदी है कि नवीं जगह मतलब इन्होंने एक व्हीकल बनाना है, इस करके तुसीं याद रखना है, इसनूं निमोनिक्स बना लो, आप याद करना है। बल्कि जनरली अगर आप गल करिए तो एड्डी वड्डी ईसरो ने जो साडी कंट्री जो प्रोग्रेस कर रही है, खास तौर पर मैं स्पेस रिसर्च की गल करांगा तो पूरी दुनिया के विच साडा परचम लहराया जा रहा है, बट जो सिर्फ इत्थे मेरा तरीका तुहानूं याद कराउण दा है। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे। क्वेश्चन नंबर 18वां है,
18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਫॉर ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ 3rd ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਸ 2020। ਚਲਿਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ 2020 ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਗੁਹਾਟੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ? 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੌਨ ਬੋਲਸ। ਲੌਨ ਬੋਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਚਲਿਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਨ ਬੋਲਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 6500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਥਲੀਟ ਔਰ 37 ਟੀਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ WHO, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ WHO ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? WHO ਹੈਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 2020 ਐਜ਼, ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਬੇਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਨਰਸ ਐਂਡ ਮਿਡਵਾਈਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਨਰਸ ਐਂਡ ਮਿਡਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ WHO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਜਨੇਵਾ। ਜਨੇਵਾ ਮਤਲਬ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਨਰਸ ਮਿਡਵਾਈਫ ਇਨ मैं कहूँगा कि ऑनर ऑफ यानी 200वें यानी 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, याद रखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल। WHO है ना, ये और भी लॉन्च करेगा फर्स्ट एवर स्टेट यानी वर्ल्ड्स में कहेंगे नर्सिंग रिपोर्ट 2020, लगभग 73rd सैशन ऑफ वर्ल्ड हैल्थ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੇਮ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਾ ਨਿਊ ਐਂਡ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ NEST। ਨੇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊ ਐਮਰਜਿੰਗ ਐਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਟਰੈਟਿਕ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ अगर बिचों आवाज़ वगैरह कटिंग होवे तो सो दैट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नैटवर्क का थोड़ा इशू है। ठीक है, तो नेक्स्ट की फुल फॉर्म की होएगी? न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। बिल्कुल राइट आंसर है। बेसिकली यह की है, यानी याद रखना है कि MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्होंने एक सैटअप किया है नवा एमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टैक्नोलॉजी जिन्होंने नैस्ट कहते हैं। डिवीजन किया कि हैल्प करेगा, डील किहदे नाल करेगा? एमर्जिंग एंड टैक्नोलॉजीज नाल। ठीक है, तो ये फैक्ट्स तुसीं याद रखना है। मतलब कि चाइना ने जिवें कि 5G नैटवर्क शुरू करता है, तो इस करके इंडिया का भी किते ना किते प्रयास है कि इस इहो जिहे प्रोजैक्ट लियाउण होर भी वाधों अगे हैल्प करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड द मैं कहांगा कि टर्टल रीहैबिटाइजेशन सेंटर इनोग्रेटेड, कित्थे किया गया वा इनोग्रेटेड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो तुसीं चैक करना है। ये 5 ऑप्शन तुहानूं दिते गए हैं, इहदा सही आंसर होएगा बिहार। बिल्कुल राइट आंसर है। तुहानूं ये भी पता होना चाहिए कि न्यू दिल्ली तो बाद यानी दिल्ली के इलैक्शनस तो बाद उस तो बाद बिहार दे विच इलैक्शनस होणगे। इत्थे तुहानूं बेसिकली फिर भी एडिशनल फैक्ट्स की जरूरत पएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। दसना चाहांगा कि यानी मैं कहांगा कि पहला ये जो कि रीहैबिलिटेशन सेंटर है, ये जो कि फ्रैश वाटर टर्टल इज़ टू बी इनोग्रेटेड किया जा रहा वा जनवरी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾएगा। भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ है। ठीक है, इन्ना तुसीं याद रखो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इन्ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਮ ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਚ ਲਾਂਚ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਫਸਟ ਸਟੇਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਪ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਸਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਪ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ISC ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੂ ਵਨ ਦਾ 100th ਗਲੋਬਲ ਚਾਈਲਡ ਪੈਰੋਡਿਗੀ ਅਵਾਰਡ 2020। ਪੈਰੋਡਿਗੀ ਅਵਾਰਡ 2020 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਫॉर ਦਾ ਸਿੰਗਿੰਗ 120 ਲੈਂਗੁਏਜਸ 120 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਚੇਤਾ ਸਤੀਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੁਚੇਤਾ ਸਤੀਸ਼ ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਈ ਬੇਸਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰਲ ਹੈ ਸੁਚੇਤਾ ਸਤੀਸ਼, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਹੈ। 120 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ ਲਗਭਗ, ਇਹਨੇ ਬਲਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें 100 ग्लोबल चाइल्ड जो कि प्रोडिगी अवार्ड 2020 इन्हें जितया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड सैरेमनी हुई सी अशोका होटल दिल्ली के हुई सी, जिथे सचेता एक स्टूडेंट है दुबई के इंडियन हाई स्कूल के इनू नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले ते की जानकारी है। इस तो पहला दसना चाहना है, जो चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो। पंजाब पटवारी तथा पंजाब PCS की तैयारी लिए तुसीं गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके अपने टेस्ट सीरीज लै सकते हो, इतों ई-बुक्स लै सकते हो। थोड़े एग्जाम लिए बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है जो कि टाइम टू टाइम असीं डेली अपडेट्स कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच स्कीम ए टोटल ऑफ 171 जो हॉस्पिटल्स ने मैं कहांगा कि हॉस्पिटल्स तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए पेनल्टी वॉज इंपोज की गई है कमिटिंग फ्रॉड एंड फ्रॉड करने वास्ते। खास तौर पर याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो RSBY बारे पूछा गया सीगा, राष्ट्रीय मैं कहांगा कि स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उस तो अलावा आयुष्मान भारत हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम चलती है, एक चलती है कि यूनिवर्सल हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मुताबिक जो सही आंसर की होएगा 171 हॉस्पिटल्स ते यह चीज़ यानी तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए पेनल्टी के बेस पर किया गया है। तो यदा आयुष्मान भारत हैल्थ स्कीम। दोस्तों जिक्र करना चाहांगा कि बल्कि मैं किसी भी जगह का नाम नहीं लवांगा, बल्कि देखो फ्रॉड करने के बहुत सारे तरीके ने, चाहे वो बाहरी लोग ने किते ना किते प्राइवेट लोग ने या सरकारी लोग ने। क्योंकि बेसिकली की है कि चिट्टे चोर ने जिहड़े उन्होंने कोई नहीं फड़ सकता। बेसिकली की है कि अदर जिमें हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने खास तौर पर यह चीज़ निकल के राजस्थान के आई सी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनी सी। मैं दसना चाहांगा कि उत्थों के डॉक्टर्स ने जयपुर के उन्होंने उठ के पिंडों के अपने बंदे भेजने शुरू करते सी ताकि फ्री कैंप पिंड के फ्री कैंप लग्या सी। लोग पिंडों के अनजान होंगे ने, उन्होंने कहता जी तुहाडा ढूई का ऑपरेशन होएगा, तुहाडे सिर का ऑपरेशन होएगा, तुहाडे गोडियां का ऑपरेशन होएगा। खास तौर पर जिहड़े ज्ञानी लोग नहीं होंदे उन्होंने डॉक्टर्स के मगर लग के चले जाते सीगे और उत्थे डॉक्टर्स उन्हों का फ्री इलाज करते सी और वह जो फंड हुंदा सी उन्होंने आयुष्मान भारत चों कट लेंदे सीगे। किसी का इलाज बाई का भी 1 लाख रुपए का होया तो तकरीबन वह 5 लाख रुपए विड्रॉ किया जाता सीगा। सो दैट कि बहुत वड्डा फ्रॉड है उत्थों इंक्वायरी हुई है, तो इस करके ये इदां दे बहुत ज़्यादा हुई है बल्कि जो हकीकत के तौर पर। ठीक है, याद रखना है कि नैशनल हैल्थ अथॉरिटी यानी NHA जो कि इन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया है, जो कि जिन्नियां भी फाइंडिंग्स हुई ने और इस दे तहत उन्होंने इंपोज किया गया वा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मनी स्टेट्स हैव फाइनलाइज्ड अ सेक्शन एक्शन प्लान फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी यानी जिन्हों कहते हैं AEP। ठीक है, इनहैंस एक्सपोर्ट्स। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫॉर ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 8 ਸਟੇਟਸ ਨੇ। 8 ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ APEDA। APDA ਕੌਣ ਹੈ? याद रखना है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीडर याद रखना है प्रोसीडर। उस तो बाद होता है कि फूड
एंड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, ਇਹਦੀ फुल फॉर्म ਇਹ ਬਣਦੀ है। 8 स्टेट ने, 8 स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਪੀ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਰਲਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਅਸਮ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਖੀਰਲਾ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਐਨਹੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਚਲਿਏ देखते हैं आप अगला गां वाला क्वेश्चन की कहता है। नाम दसना है पहले स्टेट का इन इंडिया दैट द शॉर्टलिस्ट द माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान एलिजिबिलिटी अंडर द न्यू सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इस एक्ट के तहत यानी दसना है कि फस्ट स्टेट किहड़ा वा। तुसीं 4 ऑप्शनों के बेस से दस सकते हो, पंजवां तुहानूं नन ऑफ दीज दिता है। दसना चाहांगा यूपी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यह एक एक्चुअल दे विच इत्थे भारतीय जो कि यूनीयन गवर्नमेंट है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਇਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 75 ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, उन्होंने यूपी के फाउंड किया गया, उन्होंने तहत उन्होंने एलिजिबिलिटी के बेस से उन्होंने नागरिकता इत्थे देने का कारोबार शुरू हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की कहता वा तुहानूं, नैक्सट क्वेश्चन कहता कि हू विल चेयर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दैट विल डिस्कस एंड एग्जामिन द प्रोपोज्ड नैशनल ट्रैफिक पॉलिसी 2016। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। 4 ऑप्शन फिर दिते गए, पंजवां नन ऑफ दीज दिता गया है। जिसका सही आंसर होएगा अमित शाह। अमित शाह कौन है? अमित शाह साडे देश के होम मिनिस्टर ने। ठीक है, होम मिनिस्टर ने, और तुहानूं पता ही इन्हां बारे काफ़ी कुछ जानते हैं, एवरीबडी नोज। ठीक है, याद रखना है कि सॉरी फॉर दैट, अमित शाह ने अनाउंस किया है हैड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी GOM कहांगे डिस्कस करने वास्ते, एग्जामिन करने वास्ते प्रोपोज्ड जो कि नैशनल ट्रैफिक पॉलिसी 2016 नूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। की क्वेश्चन च अगले च जानकारी दे रखी है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स ने सारियां दी सारियां। तुसीं नाम दसने द मोस्ट पावरफुल मिलिटरी कमांडर का नाम दसना ऑफ ईरान, जिन्होंने मैं कह सकता जिन्हों की हाल ही में डैथ हो चुकी है। अमेरिकन ने एयर स्ट्राइक किया सीगा बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन इराक दे विच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਰਾਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਗਦਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਸਿਮ सोलेमनी। कासिम सोलेमनी ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ सोलेमनी ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एयर स्ट्राइक किया। तो बाई द वे वो भी उस फेट च आ गए, और जो कि जख्मी हो गए और मर गए। बेसिकली उन्होंने पहचान हुई सी जदों कि उन्होंने हत्थ ते एक कड़ी बनी हुई सी, जिस तो पहचान हुई है। गल करते हैं कि ईरान जो कि इस्लामिक मैं कहूँगा रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप यानी IRGC है, वो बल्कि उन्होंने मारे गए ने, ये चीज़ की पुष्टि हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है। नाम दसना तुसीं पहला ऑफ इट्स काइंड ऑफ मैं कहांगा कि स्टैंडर्डाइज एंड हैल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यानी जिसनों SHIP कहते इंट्रोड्यूस बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDIA। इसकी इन्फॉर्मेशन याद रखनी तुसीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्होंने मस्ट भी ऑफर्ड किया ऑल द जनरल एंड जो कि मैं कहांगा कि स्टैंड अलोन हैल्थ इंश्योर विद द इफेक्ट फ्रॉम द अप्रैल 2020। मतलब की है? मतलब यह है कि भारत सरकार के हुक्मां अनुसार जो कि हैल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यानी जिन्होंने शिप के नाम तो जाना जाता है, इन्हें इंट्रोड्यूस किया है हैल्थ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खास तौर पर सारे लिए पाबंदी तौर पर एक इफेक्टेड बल्कि इंश्योरेंस की स्कीम भी की जा रही है अगे भी सारे का इंश्योरेंस होना लाजमी है। बेसिकली इसनों आप नाम दसना इत्थे पहली किहड़ी है, तो इसका सही ऑप्शन होएगा आरोग्य संजीवनी। बिल्कुल राइट आंसर है आरोग्य संजीवनी। इसकी एडिशनल डिटेल तुहानूं दिना है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI। ठीक है, इन्होंने की किया कि मैंडेट ऑल दा मतलब जिन्ने भी आप हैल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस जिमें कंपनीज ने उन्होंने ऑफर किया कि फस्ट ऑफ इट्स काइंड स्टैंडर्डाइज एंड हैल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वास्ते जिहदा नाम दिता गया आरोग्य एंड संजीवनी कि तुसी इस दी बेस ते भी अगे इंश्योरेंस करने ने। ठीक है, चलिए
बाकी तुहानूं डिटेल्स हेठां मिल जाएगी। तुसीं इहनूं आफ्टर दिस सैशन तुहानूं कुछ समय बाद टैलीग्राम 'च PDF भी मिल जाएगा जिੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ रीड आउट कर सकते हो। साडी ऑफिशियली वैबसाइट ਤੇ भी मिल जाएगा जिੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प होएगी। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज इलैक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ गिनिया बिसाऊ। ठीक है, दसना कि गिनिया बिसाऊ के प्रेजिडेंट कौन ने। इतने 5 ऑप्शन ਤੁਹਾਨੂੰ अवेलेबल ने। दसना ਇਹਦਾ राइट आंसर की है, ऑप्शन नंबर तीजा होएगा। ठीक है, ਤੁਸੀਂ याद रखना इतने उमारो उमारो मुख्तार सिसोको। ठीक है, याद रखना है उमारो। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बिसाऊ। ठीक है, तो मैं कहांगा इत्थे कि जीनिया बिसाऊ के प्रेजिडेंट कौन ने। तुसी कहोगे कि उस उमारो मुख्तार। उमारो मुख्तार बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कुछ होर एडिशनल चीज़ां जानते हैं। उमारो मुख्तार है ना, इन्हां ने हाल ही दे विच मैं वैसटर्न अफ्रीकन स्टेट है एक, ठीक है, जिहदा नाम की है कि जीनिया बिसाऊ है। इनू प्रेजिडेंशियल इलैक्शन जित्ते इन्होंने, प्रेजिडेंट इन्होंने बनाया गया। इस तो पहले इत्थे प्रेजिडेंट कौन सी, इत्थे सीगा जोश मारियो वैज। जोश मारियो वैज सीगे। बल्कि उमारो है ना बेसिकली बिलोंग करते हैं ये मैडन यानी G15 पार्टी तो। ठीक है, जिन्होंने कि इतों बेसिकली इलैक्शन जितया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 31वां है। 31वें क्वेश्चन की जानकारी, विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवैल्थ गेम्स शूटिंग एंड आर्चरी इवेंट्स अंडर द एजिस ऑफ द कॉमनवैल्थ गेम्स यानी CWG फ्रेंडशिप प्रोग्राम मार्च 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ है ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟ करेगी, तो यह यानी भारत जिंदाबाद। ऑप्शन नंबर चौथा आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। बेसिकली थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ छोटिया छोटिया गल्लां होर भी याद रखनियां पैणगियां, एग्जाम 'ਚ थोड़ा पूछिया जा सकदियां। इस करके इसनूं वन लाइनर ही क्वेश्चन नूं याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की गल करते हैं। जितों तक गल करते हैं भारत ने यानी 2018 ओलंपिक होया सी, टोटल 66 मैडल जिते सीगे, जिन्हां चों 26 गोल्ड मैडल सीगे। ये भी तुसीं याद रखना है। अते जो मैं कहांगा कि कॉमनवैल्थ जो बल्कि जरा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू नाल आपां नूं कुछ चीज़ां याद रखनियां पैणगियां कि 26 यानी टोटल गोल्ड सीगे, 66 मैडल सीगे, जिहदे च इंडिया की ओवर गल करिए तो 10वीं रैंक बनती सीगी 2018, जो कि कॉमनवैल्थ गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया दे विच खेलिया गया सीगा। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपां दे रखे 32वां। इन्हां चों दसना किहड़ा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कर्मचारी मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द 12.55 लाख इंप्लॉयज ऑफ द स्टेट। तो यदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वैस्ट बंगाल, असम। का राइट आंसर की होएगा, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला है MP जिन्होंने कहा जाता है। कमलनाथ इत्थों के मुख्यमंत्री ने, तुहानूं याद होएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार पूछा गया वा। मध्य प्रदेश ने स्कीम शुरू की है। कमलनाथ इत्थों के मुख्यमंत्री ने जिन्होंने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर इंप्लॉयज हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम होएगी, जिहड़ा कि तकरीबन इत्थे ऑलमोस्ट मैं 12.5 लाख इंप्लॉय वास्ते मस्ट किया गया। 5 लाख रुपए का जनरली इलनेस हो तो 10 लाख रुपए का यानी क्रिटिकल इलनेस होएगा। और कैशलैस ट्रीटमेंट फैसिलिटी अप टू 10,000 पर एनम OPD वास्ते होएगा। ठीक है, चलिए 33वें नंबर क्वेश्चन की जानकारी देखते हैं आप। विच 2 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द नवल एक्सरसाइज, यानी जिसका नाम दिता गया नसीम अल बार। ठीक है, गोवा दे विच हो रही रिसेंटली हुई है। तो दसना है कि इत्थे किहड़ियां 2 कंट्री सी, इंडिया दे नाल किहड़ी सी। डेफिनेटली तो पता है कि इंडिया हो सकती है, तो इंडिया अते ओमान बिल्कुल राइट आंसर है। इंडिया और ओमान बिल्कुल राइट आंसर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सैशन अच्छा लग रहा है तो पंजाब कैरियर अड्डा नूं शेयर कर दो और चैनल सबसक्राइब भी करो। थोनों डिटेल्स अप टू डेट इत्थे मिलती रहेगी और डेली विजिट करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। उस तो पहला कुछ होर भी चीज़ां तुहानूं पूछियां जा सकदियां। रॉयल नेवी ऑफ ओमान वेजल यानी RNOW है। तकरीबन तुसीं कहना है कि अल राशिक इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया सी इंडिया के नाल। चलिए नैक्सट क्वेश्चन हैगा 34th है। विच स्टेट हैज़ सैलीब्रेटेड द 4th एडिशन ऑफ द बुक्सा बर्ड फैसटिवल 2020, यानी इस क्वेश्चन का मतलब की है, इहो जिहा किहड़ा स्टेट हैगा जिन्हें सैलीब्रेट किया 4था एडिशन बुक्सा बर्ड फैसटिवल 2020 रिसेंटली। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल थोड़े तो की आंसर पूछा जा सकता है। बॉक्सा जो है ना, बॉक्सा याद रखना है, ये वैस्ट बंगाल के बहुत ज़्यादा है। वैस्ट बंगाल के लोग है ना जो बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है, तो मतलब बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा खेलती है। और बुक्सा नैशनल पार्क भी इत्थे भी याद रखना है तुहानूं, इस करके चीज़ां इंपॉर्टेंट है। तो वैस्ट बंगाल के बारे तुहानूं पता ही है। वैस्ट बंगाल के जोड़े मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी है। एग्जाम नाल पूछा जा सकता तुहानूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, तो तुसीं याद रखोगे। चलिए
होर भी कुछ चीज़ां निकल के आउणगियां। दसना चाहांगा कि वैस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने पार्टी बल्कि पार्टिसिपेशनस ऑफ अराउंड तकरीबन 50 लोगों ने इत्थे पार्टिसिपेट किया सीगा। होर भी इंपॉर्टेंट जानकारी ने जितों तक तुहाडे नाल होएगी मैं तुहाडे नाल जानकारी शेयर करांगा। नैक्सट क्वेश्चन देख लेंगे 35 नंबर क्वेश्चन ਨੂੰ ਕੀ जानकारी लिया गया वा। वेयर डिड इंडिया हैज सैटअप द न्यू वर्ल्ड क्लास यानी फैसिलिटी सेंटर फॉर ट्रेनिंग द एस्ट्रोनॉट्स ਦੇ ਲਈ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर यानी कित्थे सैटअप किया गया इंडिया का। तो इत्थे 5 ऑप्शन दिते गए ने, पंजवां नन ऑफ दीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तीजा ही आंसर होगा, कर्नाटका दे विच है, ये भी तुसीं याद रखना है। ठीक है, यानी चला केरे एक जगह है, उत्थे किया गया कर्नाटका दे विच। ठीक है, कर्नाटका दे विच इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस तो पहले अलायंस की गवर्नमेंट सी जिहड़ी कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो अपना बल्कि फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर सके, इस करके बीजेपी की है। यदूरप्पा उत्थों के मुख्यमंत्री ने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुहाडे तो पूछा जा सकता है, इसनूं याद रखना है। अगला क्वेश्चन दसना कि इन्हां चों किहड़ा स्टेट है और मैं कहांगा कि ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जो यानी कोटपाई फैसटीवल 2020 अक्रॉस द 10 स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत के लगभग 10 स्टेटां विचों इसनूं कवर किया जा रहा है। पहला एडिशन हो रहा है कि बेसिकली एक यह मैं दसना चाहांगा फैसटीवल है, फैसटीवल का नाम की है कि जो कोटपुरी। देखो जो कोटपुरी की गल है ना, खास तौर पर कुछ अजीब जहा नाम लग रहा है, मैनू अजीब जहा नाम लग रहा है, तो मैं अंदाजा भी मारांगा तद भी सही जाएगा, मिजोरम है। क्योंकि यूपी के मैक्सीमम सानू पता है, वैस्ट बंगाल के मैक्सीमम पता है, या तो मिजोरम से या नागालैंड से, इस करके मिजोरम बिल्कुल राइट चॉइस होएगा। बेसिकली कि एक ट्राइब जो कम्यूनिटी है ना, उस ट्राइब ऑफ जैसे मिजो कम्यूनिटी है उस दिन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ जो यानी कोटपुई फैसटीवल 2020 है, तकरीबन 10 स्टेट्स इन इंडिया और बल्कि इन ऑल्सो कंट्री एज ए जिमें कि मैरीलैंड इन द US यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, तहन इन म्यांमार हो गया, बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी तो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मिजोरम टूरिज्म डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने इस चीज़ की पूरी व्यवस्था की है, सौदा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं की जानकारी दी है। तुसी नाम दसना है, नेम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी UCB दैट रिसीव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल टू फंक्शन एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो तुहानूं इत्थे 5 ऑप्शन दिते गए ने, द राइट आंसर की होएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर तीजा बिल्कुल राइट होएगा, शिवालिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीजा शिवालिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक का नाम बिल्कुल याद रखना है तुसीं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गिव अप्रूव किया उत्तर प्रदेश का बेस्ड शिवालिक बैंक हैगा वा। ठीक है, जिसनों कि उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर अप्रूव कर दिता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन की है। नैक्सट क्वेश्चन की क्वेश्चन से जानकारी है, प्राइमरी मतलब कि आप कहांगे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है USB विल कैप्ट अंडर द सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है इफ द नेट नॉन परफॉर्मिंग असैट NPA एक्सीड। NPA मतलब एक्सीड कितना होवे, तो इसके मुताबिक आप कहांगे 6%, बिल्कुल राइट आंसर है 6%। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुहानूं तो पूछा जा सकता है NPA। ठीक है, चलिए जिथों तक गल करते हैं कि की चीज़ है ये। ठीक है, मतलब इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने रिलीज़ किया है एक फाइनल सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है, और एक्शन फ्रेमवर्क के बेस पर उन्होंने प्राइमरी मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने उन्होंने तकरीबन एक दिता है कि NPA असैट्स एक्सीड 6% नेट एडवांस होना जरूरी है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 ਦੇ ਵਿੱਚ की जानकारी दे रखी है, विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द 2020 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है फ्रॉम फरवरी 22 टू मार्च यानी फर्स्ट 2020, सो दैट कि यह आंसर केड़ा राइट होएगा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर उड़ीसा यानी बिल्कुल राइट आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर चौथा है, याद रखना है। देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, वो खेलो इंडिया गेम्स अलग ने, खेलो यूनिवर्सिटी की गल करते हैं तो भुवनेश्वर उड़ीसा के विच ये होने जा रहे हैं, यानी 22 बल्कि याद रखना 22 फरवरी तो लैके ऑलमोस्ट 1 मार्च तक, और 10 जनवरी तो लैके चालू ने फरवरी तक के किहड़े चल रहे हैं खेलो इंडिया। चलिए जिथों तक गल करते हैं, याद रखना है कि उड़ीसा यानी मैं कहांगा कि पहला स्टेट होएगा जिहड़ा कि पहले इस गेम नूं होस्ट करेगा 2020 दे विच, जिसका नाम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, चलिए यदि जानकारी होर भी तुसीं याद रखनी है। इस तो इलावा भुवनेश्वर दे विच KIT जिमें यूनिवर्सिटी है, जिमें कि कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो श्री किरण रिजिजू है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने नवीन पटनायक है, इन्होंने द लोगो भी जारी किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत। ठीक है, चलिए अते याद रखना है जय एंड विजय इसकी थीम रखी गई है। अज की सीरीज़ का नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन की 40वें क्वेश्चन जानकारी है
ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਲ ਆਬਜ਼ਰਵ यानी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ईयर ऑफ द मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी के तौर पर किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मनाएगी, CISF है, RPF है, बल्कि CRPF है या BSF है या CAPF है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर होएगा CISF है। CISF का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है। यह की करेगी, ऑब्जर्व करेगी ईयर ऑफ द मोबिलिटी के बेस पर इन्होंने मनाने का फैसला किया। एम्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द मोर रेजिडेंशियल यूनिटी एंड इंप्लीमेंटेशनस ऑफ वेरीअस वेलफेयर जैसे मेजर्स फॉर द ट्रूप्स हो गया, ठीक है। तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, की जानकारी तुहानूं दे रखी है। सुनीता लाकड़ा वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, सी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, किहड़े स्पोर्ट्स के विचों बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हॉकी के विचों ने, ठीक है, हॉकी के विचों ने। याद रखना है कि सुनीता लाकड़ा ने इन्होंने न्यूज़ रिसेंटली इन्हों की बनी हुई अनाउंस किया रिटायरमेंट रिसेंटली, इन्होंने बेसिकली हॉकी तो बिलोंग करते हैं। वीमेन हॉकी टीम डिफेंडर सीगे सुनीता लाकड़ा जी, जिन्होंने 2018 एशियन गेम्स जो कि सिल्वर विनर मैडल जितया हुआ इन्होंने, ठीक है, ये भी याद रखना। तकरीबन 139 इन्होंने मैचेस खेले ने। 2014 के इन्होंने एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मैडल भी जितया सीगा, ठीक है। उड़ीसा के रहने वाले बेसिकली याद रखना है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देख लें आप, अगले क्वेश्चन की जानकारी है। दोस्तों मैनू साह चढ़ गया। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है, डारलीपली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ये दसना है किहड़े स्टेट में है, ठीक है। मैं थोड़ा याद करावांगा। डारलीपली, देखो डारलीपली, ठीक है। तुसीं कह रहे हो डारलीपली का मतलब है, इत्थे तुसीं कह रहे हो डार्लिंग पली, पली डार्लिंग है, ठीक है, उड़ीसा। तो मतलब कि यदि याद रखना है दिशा, बड़ी दिशा ही बहुत सोहनी है दी दिशा, यानी डार्ली दी डार्लिंग दी दिशा बहुत सोहनी है। सो दैट कि तुसीं इत्थों याद रख सकते हो पावर स्टेशन डार्लिंग यानी डार्ली पली पावर स्टेशन कित्थे है, उड़ीसा दे विच है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देख लें कि नैक्सट क्वेश्चन की जानकारी आपां नूं अगले क्वेश्चन ते आपां जानकारी जटाउण की कोशिश करते हैं। नैक्सट है हुंपी कोनेरू वाज न्यूज रिसेंटली, सी इज एसोसीएटेड विद विच स्पोर्ट्स, मतलब किहड़े स्पोर्ट्स दे विचों ने ये, ठीक है। तो याद रखना एक चैस दे विचों ने। की नाम इन्हां दा, हुंपी कोनेरू, हुंपी कोनेरू, हुंपी कनेरू है। यह किहड़े बल्कि गेम न्यूज़ दे विच सीगे किहड़े स्पोर्ट्स तो ने, तो चैस दे विचों ने। याद रखना तकरीबन इन्हां दी उम्र 32 साल है, ठीक है। यह चैस ग्रैंड मास्टर है और स्पेशली बिलोंग करते हैं आंध्रा प्रदेश तो, ठीक है। यानी मैं गल दसांगा कि तकरीबन इन्हां दी ओवरऑल 12वीं रैंक है, ये भी तुसीं याद रखना है। सैकेंड डे जो कि वर्ल्ड ब्लिज कंपीटीशन 2019 दे विच होया सीगा, ये होया सी मॉस्को रशिया दे विच, ठीक है। उत्थे तकरीबन इन्हां ने 17 गेम्स आउट ऑफ तकरीबन 10.5 पॉइंट्स हासिल किए सीगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने आपां। अगले क्वेश्चन की की जानकारी तुहाडे कोले और तुहाडे सामने जानकारी पेश है। इन्हां च दसना कि इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड हू इज़ द, मतलब इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर है जो कि आयरलैंड के ने। इन्हां दे विचों तुसीं ईजिली नाम पिक कर सकते हो, तुहानूं बहुत आसानी होएगी नाम पिक करना। तो इन्हां दा जो नाम है लियो, याद रखना है लियो वाराडकर, लियो वाराडकर है इन्हां दा सही आंसर होएगा। लियो वाराडकर है ना पहले भारतीय ओरिजिन मैं कहांगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड बने हैं। बेसिकली न्यूज़ दे विच बहुत ज़्यादा सीगे और बिकॉज ही हैड विजिटेड गोवा टू सैलीब्रेट न्यू ईयर, ठीक है। ऑल्सो विजिटेड महाराष्ट्र टू हिज, मतलब उन्होंने बेसिकली महाराष्ट्र के जिमें सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर तो इन्हों के पिछे जो कि करदा आउंदा ना खास तौर पर हेगड़े वगैरह या इन्हों के सरनेम्स ने यही बिलोंग करते हैं MP वगैरह तो, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देख लेने की जानकारी। नैक्सट क्वेश्चन ते व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन की है, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन तुसीं याद रखनी है। तो इसका सही आंसर होएगा इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है, ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। नैक्सट क्वेश्चन देख लेने आप। नैक्सट क्वेश्चन तुहानूं दे रखा कि मानव ठाकर है जो बीकम द वर्ल्ड्स फस्ट प्लेयर टू रिसेंटली एसोसीएटेड विद विच स्पोर्ट्स, किहड़े स्पोर्ट्स तो ने। अगर वर्ल्ड के पहले नंबर पर गए तो डेफिनेटली ये इन्हों का नाम आ सकता है, टेबल टेनिस होएगा। टेबल टेनिस यानी इन्हों की तकरीबन 19 साल की उम्र है और यंग इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर ने और खास तौर पर इन्होंने जंप किया और वर्ल्ड के नंबर पहले बने ने। अंडर यानी उन्होंने प्लेयर है अंडर 21 मेनज सिंगल कैटेगरी है, रैंकिंग रिलीज़ किया गया वा यानी
ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा, ठीक है। और ठक्कर ने जितया है अंडर 20 मेनज सिंगल टाइटल। इन्हों की उम्र बेसिकली 19 साल, बट इन्होंने 21 अंडर 21 वाला सिंगल टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है, जो कि कैनेडा के टूरनामेंट होया सी, उत्थों इसने टाइटल जितया, सो गॉट द फर्स्ट रैंक। क्लीयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने हैं। हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यानी एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का ना बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की आयात और निर्यात होंदा है ना, वो बेसिकली बैंक के थ्रू जिन्ना भी कुछ लैन देन होंदा है। तो इन्हां दे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन ने, तो इन्हां 5 ऑप्शनों के आधार पर मैं तुहानूं दस्सांगा। इन्हां दा सही आंसर होएगा डेविड रोस्क्यूना। डेविड रोस्क्यूना बिल्कुल राइट आंसर होएगा। चलिए ठीक है, हुण तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे कि एग्जिम बैंक का हैडकुआटर कित्थे है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने आप। नैक्सट क्वेश्चन है महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक किहड़े स्टेट दे विच है, याद रखना है महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इन्हां एग्जाम के पॉइंट ऑफ नाल देखते हैं कि यदा सही आंसर होएगा गोआ, ठीक है। तो बेसिकली ना गोआ के जिन्ने भी वाइल्ड सेंचुरीज ने उत्थे की है कि सारे महादेवियां की पूजा होंदी है। याद रखना किहदी होंदी है, महादेवियां की पूजा होंदी है। तो इस दे बेस ते तुसीं रिलेट करके इहनूं याद कर सकते हो। एग्जाम के रिलेटेड हर चीज़ों निमोनिक्स बना के याद करोगे तो तुहानूं आसान हो जाएगा। बेसिकली की है ना कि जिहड़ी महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोआ दे विच ने, कित्थे ने दोस्तों, ये गोआ दे विच ने, ये भी तुसीं याद रखना है। चलिए इहदी जानकारी होर की कुछ हो सकती है। हुण इत्थे तुहानूं गोआ दे की पूछा जा सकता है कि CM का नाम पूछा जा सकता है, तुसीं कमेंट करके मैनूं दसोगे। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा तुहानूं, की क्वेश्चन दे विच है प्रेजिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन कौन ने। इन्हां 5 ऑप्शनों के आधार पर तुसीं कह सकते हो कि इन्हां दा नाम नरेंद्र बत्रा बिल्कुल राइट आंसर होएगा। नरेंद्र बत्रा है जो कि ओलंपिक एसोसीएशन दी कौन ने प्रेजिडेंट ने, ये भी तुसीं याद रखना है, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तुहानूं पूछा गया नेम द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द 36.13 करोड़ रुपए LED बल्ब अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि उस स्कीम का नाम दसना जिस दे तहत तकरीबन 36.13 करोड़ रुपए LED बल्ब अक्रॉस द कंट्री विच वंडे गए ने। तो इस स्कीम इहदा नाम की है, इहदा नाम हैगा उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। तो ठीक है, जिन्हों आप कहने हैं उज्जवल, ठीक है, उज्जवल जिन्हों कहा जाता है, यानी उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म इसकी बनती है उज्जवल, ठीक है। तो दोस्तों अज की सीरीज बेहतरीन 50 क्वेश्चन असी कवर किए। आई थिंक थोड़ा बहुत मज़ा आया होएगा और मैं कोशिश की है कि थोड़ा हर पक्षों सारे क्वेश्चन की डिटेल प्रेम ना प्यार ना मुहब्बत ना थोड़ा टीच किया है। प्लीज़ जाते जाते एक लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो और सबसक्राइब कर दो। और प्लीज़ चैनल को शेयर और सबसक्राइब करना बहुत जरूरी है। और ऑफिशियल वैबसाइट पर गिल्ज मेंटोर की विजिट करके तुम अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सीरीज लै सकते हो और फ्री तुम हज़ारों बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय।